ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਈਟੀਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3rd ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦ MCQ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ MCQ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਸਭ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ MCQ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਓਡੋਮੀਟਰ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੀਅਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਪੀਡ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਓਡੋਮੀਟਰ ਆਫ ਐਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੀਅਰਸ। ਤਾਂ ਓਡੋਮੀਟਰ ਕੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ, C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰੈਕਟਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। 3rd ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ B, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਹੂਜ਼ ਸਪੀਡ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 20। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ 20 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 0.25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ D। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ A। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਏਅਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ B, 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਸਪੀਡ ਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਜਾਇਓ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ D, A, B, D। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਆਫ ਕਲੌਕ। ਜੋ ਕਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਤਲਬ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
इस करके अपना राइट ऑप्शन की हो गया, ऑप्शन बी एंगूलर मोशन। ठीक है, जिस तरह कि इस सेंटर के विचों इस तरह नाल मूव करदी है तो एंगल ने जोड़े फॉर्म होंगे। क्लीयर। ये क्वेश्चन है जो अगर अपन राइट आंसर डायरैक्ट नहीं भी पता तो आप की है ऑप्शनस को एलिमीनेट करके आंसर है जो फाइंड कर सकते हैं। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रजेंट्स नॉन यूनीफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ जी, क्वेश्चन अपने किया सीगा, तुहानूं सबनों आंसर पता होना। नॉन यूनीफॉर्म मोशन का किहड़ा ग्राफ है? ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट वाला कद है कॉन्सटेंट का, सैकेंड यूनीफॉर्म मोशन, थर्ड कद है नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नैक्सट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपने देखना कि एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी ते टाइम दे विच किहड़ा रिलेशन है? B/T बराबर काहदे हुंदा है? ए दे। ए की है? एक्सलेशन यानी कि प्रवेग। इहदा की हो गया ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा करैक्ट हो गया। नैक्सट हैगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन। आपां 4 टाइप्स पढ़िया ने, लीनियर, यूनीफॉर्म, नॉन यूनीफॉर्म एंड सर्कुलर। ठीक है जी, ये तुसी 4 टाइप्स ने जिहड़ियां याद करनियां ने। नैक्सट क्वेश्चन हैगा वट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। आपां स्पीड का फॉर्मूला काफ़ी बारी कर चुके। स्पीड की हुंदा है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस काहदे विच मेजर करदे हां? मीटर दे विच, टाइम सैकेंड्स दे विच, मीटर पर सैकेंड। अपना ए ऑप्शन है जिहड़ा करैक्ट हो गया। नैक्सट हैगा वट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रक वैन इट ट्रैवल 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एवरेज स्पीड देखनी अपने, डिस्टेंस दिता आपां, टाइम दिता है। स्पीड की हुंदी है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना अपने को 100 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स, तो अपने को कैंसल करके कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। नैक्सट अपने को है आ स्केलर क्वांटिटी इज़ रिप्रजेंटेड बाय। स्केलर क्वांटिटी के विच आपां की चीज़ां देखते हैं? आपां पढ़िया सी कि स्केलर क्वांटिटीज़ की हुंदियां ने, वैक्टर की हुंदियां ने। स्केलर की हुंदियां ने जिन्हां दे विच सिर्फ मैगनीट्यूड होवे, डायरैक्शन ना होवे। अगर आपां इत्थे वैक्टर क्वांटिटी पुछ लेंदे तो आपां लिखदे जिहदे विच मैगनीट्यूड भी होवे ते डायरैक्शन भी होवे, दिशा भी होवे ते मात्रा भी होवे, तो उदों आंसर आ जाना सी अपना सी। बट हुण किहड़ा आंसर करैक्ट है? ऑप्शन ए। क्लीयर। नैक्सट है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। कि जिहड़ा मोशन है वो सर्कल दे विच हो रहा है, इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा मोशन है सर्कल दे विच हो रहा है? फर्स्ट है मोशन ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन है जिहड़ा इस तरह नाल जांदा ना, इहदा मोशन है जिहड़ा सर्कुलर इस तरह मूव नहीं करता। ठीक है, एरोप्लेन, इस करके ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नैक्सट है मोशन ऑफ बॉल। जिहड़ी बॉल है उसका मोशन की हुंदा है इस तरह नाल। ठीक है, करव शेप, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड अपने को है मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक। तो जिहड़ी घड़ी दीयां सूइयां ने वो की है सर्कुलर पाथ करदियां ने, इस करके की हो गया सी की हो गया करैक्ट ऑप्शन हो गया अपना। ठीक है, नैक्सट अपने को है क्वेश्चन नंबर 15 डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ जी, डिस्टेंस नूं आपां 2 तरीके नाल लिखदे सी, एक आपां लिखदे सी एस ते एक लिखदे सी आपां टी सॉरी एच। ठीक है, हुण आपां ना ये देखना है कि इन्हां 4 फॉर्मूलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किस दे विच एस ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एच प्रेजेंट नहीं हैगा। देखो फर्स्ट फॉर्मूले ਵਿੱਚ एस हैगा तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ कर सकते हैं। थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ एस हैगा इस नाल भी ਆਪਾਂ कर सकते हैं। फोर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ एस हैगा इस नाल भी कर सकते हैं। तो किस नाल नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर बी। बी है ਜਿਹੜਾ अपना करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट अपने को है एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी मूविंग विथ कॉन्सटेंट स्पीड बट स्टिल एक्सलेटिंग। कोई बॉडी है जिहड़ी वो की है कॉन्सटेंट स्पीड के नाल इक्को जी जिहड़ी हैगी है चाल दे नाल चल रही है, पर फिर भी वो की है एक्सलेट कर रही है। ठीक है, इस तरह नाल एक्सलेट कर रही है। तो आप देखना है
कि इन्हां दे विचों किहड़ी एग्जाम्पल आ वो। अ बॉय मूविंग विद कॉन्सटेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधे रोड के उपर बॉय जा रहे हैं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। नैक्सट हैगा ए बॉडी मूविंग इन अ हेलिकल पाथ विद कॉन्सटेंट स्पीड। नैक्सट हैगा अ बॉडी मूविंग विद कॉन्सटेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। अ बॉडी मूविंग विद कॉन्सटेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। तो इस दे विच स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। इस दे विच की है सर्कुलर पाथ है, ये भी नहीं हैगा। तो अपना आंसर की है अ बॉडी मूविंग इन अ हेलिकल पाथ विद कॉन्सटेंट स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रजेंट नैगेटिव एक्सलेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करैक्टली। आपने देखा सी कि जो प्रवेग आ 3 तरह का होंगे, पॉजिटिव हो सकता है, नैगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। आप पढ़िया से नैगेटिव में आप की कहने रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब कि घटना, डिक्रीज करना। तो ये ग्राफ तो उपर नूं जा रहे हैं, बी वाला, सी वाला कि नॉन यूनीफॉर्म है, ये दोनों ग्राफ नहीं हो सकते। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करैक्ट आंसर, क्योंकि ये विच की है रिटार्डेशन हो रही है, डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विच हैज़ रेडियस आर, वट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट आ राउंड ऑफ इट। आप देखते हैं कि जो सर्कल होंगे, चक्कर होंगे, इस चक्कर के आले दुआले जोड़ा है कार ने मूव करना है, ठीक है। आपको पता है कि यह आले दुआले की चीज़ होंगी है, परिमाप होंगे, जिन्होंने आप सरकमफेरेंस या पैरीमीटर भी कह दें। तो जिन्ना सरकमफेरेंस होगा उन्नी ही की मूव होगी कार। तो अपने को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला की होंगे 2πr, ए इज़ द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है वट डज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीनस। डिस्टेंस अपॉन टाइम की चीज़ होंगी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, ठीक है। आप फॉर्मूला पढ़िया की होंगी है वेलोसिटी। तो सी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है इफ अ बाईसाइकिल गोज स्पीड फ्रॉम रेस्ट टू 20 km/h इन 2 hours, वट विल बी द एक्सलेशन। एक्सलेशन का फॉर्मूला अपन पता है की होंगे, स्पीड अपॉन टाइम। अपनी स्पीड कितनी है 20 है, टाइम कितना है 2 है, कैंसल करके कितना आया 10। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 10 km/h। नैक्सट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल एक्स डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट पोजीशन ए टू अनदर पोजीशन बी। एक कोई भी चीज़ है वो कि ए तो लेके बी तक जा रही है, ठीक है, एंड रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए। बी तो वापस फिर कितने आ रही है, ए को आ रही है। बट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्टेंस यहाँ, ठीक है। हुण इन्होंने पूछा डिस्प्लेसमेंट, आप पढ़िया सी कि डिस्प्लेसमेंट के विच जिहड़े पॉइंट तो आप शुरू होइए अगर उस पॉइंट पर आप वापस आ जाने तो डिस्प्लेसमेंट की हो जाती है 0। अगर इत्थे आपां डिस्टेंस पूछा हुंदा तो आंसर हुंदा 2a, बट इन्होंने आपां की पूछा डिस्प्लेसमेंट पूछा, इसलिए ए इज़ द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट अपने को हैगा द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ चेंज्ड बाय चेंज इन विच। जी वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की वो किस तरह नाल चेंज होंदी है, किमें बदलती है, चाल है जी, ठीक है। वेलोसिटी है जी, वेग वो किस तरह नाल बदलता है, वेग की होंदा है स्पीड अपॉन टाइम, वेलोसिटी की होंदी स्पीड अपॉन टाइम। इस करके यही की है सी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। स्पीड के चेंज होने नाल भी चेंज होगा, डायरैक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने नाल भी की है चेंज हो, ठीक है। आ फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट बी नैगेटिव, केड़ी जी क्वांटिटी है कदे भी नैगेटिव है जी नहीं हो सकती। तो अपने को की है डिस्टेंस कदे भी नैगेटिव नहीं होंदा, वेलोसिटी कदे नैगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड है जी कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकती। इस दे विच ए एंड सी है जो आंसर आना सी, ए एंड सी, डिस्टेंस ते स्पीड कदे भी जो नैगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आप पढ़िया सी कि वेलोसिटी एक्सलेशन ये नैगेटिव हो सकते हैं,
ठीक है, A and C आर द करैक्ट ऑप्शंस। अगे है वट इज़ द फिक्सड पॉइंट टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जैक्ट, कि किसी पॉइंट में आप जो एक फिक्स पॉइंट लैने आप कि इतों कोई जिस तरह फिक्स पॉइंट ले लिया आपने कि इतों जो ऑब्जैक्ट मूव करूगा, जी भी डायरैक्शन के जाऊगा, जी भी दिशा च जाऊगा, इस पॉइंट पर जाऊगा, तो जोड़ा आप पॉइंट फिक्स कर लें उसनों आप की कहने पॉइंट ऑफ ओरिजन। नैक्सट अपने को है वट इज़ द मिनीमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ एन ऑब्जैक्ट। मिनीमम घट्टो घट्ट दूरी पढ़िया सी ना आपने कि घट्टो घट्ट दूरी है जी इनीशियल तो फाइनल पोजीशन की होंगी डिसप्लेसमेंट होंगी है, एक्सलेशन होंगी है, विलोसिटी होंगी है, या फिर स्पीड होंगी है। आपने पढ़िया सी कि कोई भी जो ऑब्जैक्ट है इस तरह नाल मूव करता है, अगर वह आह की है इनीशियल पॉइंट है, आह फाइनल पॉइंट है, इन्हों के जी घट्टो घट्ट दूरी होंगी है उन्होंने आप कहने विस्थापन यानी कि डिसप्लेसमेंट। ए इज़ द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट अपने को है वैन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सैड टू बी। जो कोई भी ऑब्जैक्ट है, कोई भी बॉडी है, इक्को जे टाइम के इक्को जी दूरी तय करती है, उन्होंने आप की कहने लीनियर मोशन कि सीधी सीधी जा रही है, नहीं कि आप कहने नॉन यूनीफॉर्म कि इस तरह ग्राफ बनाया से नॉन यूनीफॉर्म का इस तरह ना जा रही है, नहीं जा रही। अगला है वाइब्रेटरी यानी कि पेंडुलम की तरह इस तरह मूव कर रही है, ये भी इनकरैक्ट हो गया। ऑप्शनस को कैंसल करके आप की है राइट ऑप्शन जो फाइंड कर सकते हैं, इस करके बी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। यूनीफॉर्म मोशन, यूनीफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह बनाया सी आपने इस तरह ना। क्लीयर। नैक्सट देखो स्पेसीफाई द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ कंजस्टड रोड। कंजस्टड रोड की होंगे आ भीड़ भाड़ वाले इलाके, ठीक है, कि भीड़ भाड़ इलाकों के किस तरह का मोशन होगा, कि यह यूनीफॉर्म होगा, नहीं होगा क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इस करके की है कदे स्पीड वध जूगी, कदे स्पीड घट जूगी, हौली भी करना पै सकता आपू, किसी कार वगैरह को तेज भी करना पै सकता है, इस करके करैक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नैक्सट अपने को है एन ऑब्जैक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड एंड अगेन 60 मीटर्स इन 2 सेकेंड बट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जैक्ट। हाँ जी, ये एवरेज जी स्पीड कढ़नी आपानी। आई होप तुसी सारे भी खुद आंसर फाइंड आउट कर रहे होंगे। लास्ट दे विच तुसी कमेंट करके जरूर दसना कि तुहाडे किन्ने आंसर से जिहड़े करैक्ट सी, क्योंकि दोनों वीडियोज़ के बेस पर ही आपने जिहड़े क्वेश्चन लाए आ। ये आप देखांगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 16 मीटर पहला कवर किया है प्लस 16 मीटर बाद दे विच कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 32 मीटर। हुण आप देखांगे टोटल टाइम, टोटल टाइम किवें देखांगे आप पहला कितना सी 4 सेकेंड्स, फिर कितना 2 सेकेंड्स, कितना हो गया 6, ठीक है। अपन पता लग गया कि टोटल डिस्टेंस कितना 32, टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड्स। हुण अपन पता है कि एवरेज स्पीड कादे बराबर होंदी है, एवरेज स्पीड वो की होंदी है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना सी 32 अपॉन टोटल टाइम कितना 6, तो इन्होंने डिवाइड करके अपना आंसर आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है हुज स्पीड इज़ फास्ट लाइटनिंग और थंडर। ये क्वेश्चन है कि किहड़ी चीज़ है जिहदी स्पीड है जी ज़्यादा होंदी है, जिवें बदल गरजदे बिजली चमकती है, तो पूछ रहे कि बिजली जी आपां नूं जल्दी दिखाई दिंदी है या फिर आपां नूं बदलों की जी आवाज़ है वो जल्दी सुनाई दिंदी है, किहदी स्पीड ज़्यादा होंदी है, तो लाइट की स्पीड है जी हमेशा ज़्यादा होंदी है साउंड तो, ठीक है, इस करके दा आंसर आऊगा लाइटनिंग। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 30 वट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। हाँ जी, एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी किस तरह का होगा, आप पिछे पढ़ के इसी रिटारडेशन, रिटारडेशन मतलब कि नैगेटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये की आऊगा नैगेटिव इज़ द करैक्ट आंसर जो कि है अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं
30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है। अ बॉडी हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि जे ए एक्सेलरेशन है तो ਉਹਦੀ रिटार्डेशन की होंगी है -a। फिर अपने को ए कितना दिता -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इट मीनस रिटार्डेशन दे की होगा एक होर माइनस आ जाओ अगे तो माइनस माइनस की हो जू प्लस, इस करके बी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। क्लीयर। नेक्स्ट देखो, इफ द टाइम डिसप्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस दे पैरेलल है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। हुण आपां नूं ग्राफ तो पता चल रहा है किस तरह का ग्राफ काहदा हुंदा है। आपां 4 तरह के पढ़े है, यूनीफॉर्म हुंदा है कि नॉन यूनीफॉर्म हुंदा है जां कॉन्सटेंट हुंदा है। हुण आपां देख रहे हैं कि टाइम बदली जा रहे हैं पर जिहड़ी डिसप्लेसमेंट है वो फिक्स है, वो सारे टाइम दे विच इन्नी ही रह रही है। तो इस तरह का ग्राफ किहदा हुंदा है, कॉन्सटेंट। बी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट अपने कोल हैगा वैन अ बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ दैन इट हैज़। सर्कुलर पाथ दे विच की हुंदा है, कॉन्सटेंट स्पीड हुंदी है, कॉन्सटेंट वेलोसिटी हुंदी है, नो टेंजेंटियल वेलोसिटी जां नन ऑफ दीज। एक सर्कल दे विच सर्कुलर पाथ दे विच जिहड़ी बॉडी मूव कर रही है की होगा, कॉन्सटेंट स्पीड। क्लीयर। नैक्सट अपने को है वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन बिलो शोज दैट द बॉडी हैज़। की शो कर रहे अपन ग्राफ, यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनीफॉर्म है। तुसीं वो चारे ग्राफ ने जिहड़े चंगी तरह लर्न कर लेने हैं क्योंकि उन्होंने बेस ते सारे क्वेश्चनस बने हुए हैं कि यूनीफॉर्म ग्राफ किस तरह का, नॉन यूनीफॉर्म। आपां नूं पता है कि एक ही होगा, यह की है डिक्रीज हो रहा है यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। इस करके ऑप्शन डी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। क्लीयर। नैक्सट अपने को हैगा इन द फिगर एज शोन बिलो द वेलोसिटी की कर रही है, डिक्रीज बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए। ओ तो लैके ए पॉइंट के डिक्रीज कर रही है, ओ तो लैके ए नहीं इनक्रीज कर रही है तो यह ऑप्शन गलत हो गया। नैक्सट है इनक्रीज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए तो बी दे विच इनक्रीज कर रही है, नहीं ये भी कर रही है, डिक्रीज कर रही है। नैक्सट है डिक्रीज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए तो बी दे विच की है डिक्रीज कर रही है, अपन लग रहा है कि हाँ डिक्रीज कर रही है बट नहीं, इट्स इनकरैक्ट। ये की है इज़ जीरो थ्रो आउट क्योंकि जी वेलोसिटी है ए तो बी तक जाते हुए की होगी, बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है कि जी पोजीशन तो स्टार्ट किया सी उत्थे ही एंड करता, इस करके की होगी जीरो। नैक्सट हैगा अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। अपन क्या इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी एंड टाइम देता। अपन एक मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़िया सी की हुंदा वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले के बराबर हुंदा इक्वेशन ऑफ मोशन है, फस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लर्न की सी। बट ये आप यही इक्वेशन अप्लाई करनी है। फसटली अपने की देखना यूनिट्स, ठीक है यूनिटां का ध्यान रखना अपने क्योंकि जी अपन वेलोसिटी दी आ वो की दी हुई है किलोमीटर पर आवर दे विच, पर जो टाइम है वो की दिता है सैकेंड्स दे विच, ते जिहड़े अपने चारों आंसर है वो भी की आ रहा मीटर पर सैकेंड दे विच। इस करके जी वेलोसिटी है उन्होंने आपां पहला की करना पऊगा मीटर पर सैकेंड्स दे विच कन्वर्ट करना पऊगा। ठीक है हुण इहदे विच की है 20 किलोमीटर पर आवर नूं किवें चेंज करांगे, किलोमीटर दे विच किन्ने मीटर हुंदे है 1000, तो आपां 1000 नाल मल्टीप्लाई किया डिवाइड एक घंटे विच किन्ने सैकेंड्स होंगे है 3600। ठीक है जी हुण आपां कन्वर्ट करते हैं, 2 जीरो ना 2 जीरो कैंसल हो गई। ठीक है अपने कोल कितना आ गया 10 आ गया, 18 आ गया, तो अपने कोल जी यू है उसकी वैल्यू अपने कोल की आ गई 100 अपॉन 18। ठीक है मीटर पर सैकेंड्स। सिमिलर आप 60 का कढ़ांगे, 60 का किमें होगा 60 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600 कैंसल हो गया,
2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ है तो अपने को v कितनी आ गई 300 बटे 18। हुण अपन u भी पता लग गया v भी पता लग गया, अपन फॉर्मूला भी पता है की हुंदा है a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। v कितना अपने को 300 आया सी अपॉन 18 माइनस u कितना आया सी 100 आया सी अपॉन 18 डिवाइड बाय टाइम कितना 6। तो अपने एलसीएम ले लिया की हो गया 18 300 माइनस 100 जोड़ा डिवाइड से 6 से की हो जाऊगा 18 के नाल मल्टीप्लाई कितना आ गया 200 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 6। तो इतों तुसीं कटिंग करो 900 कितना गया अपने को 100 अपॉन 36। हाँ जी, इहदा तुसीं खुद कैलकुलेट करके डिवाइड करके खुद देखना कि चारां दे विचों किहड़ा आंसर आउंदा है। क्लीयर। नैक्सट अपने कोल हैगा द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रजेंट्स आ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। आपने देखना कि स्पीड अपॉन टाइम की चीज़ होंदी आ। पहले तो ये देखना कि स्पीड अपॉन टाइम होंदा की आ, फिर वो यूनिट देखनी आ। आपां नूं पता है कि स्पीड अपॉन टाइम की चीज़ होंदी है एक्सेलरेशन होंदी है। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट की होंगे मीटर पर सैकेंड स्केयर। तो डी की है द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट अपने को हैगा इफ द डिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ टाइम दैन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ। की कह रहे हैं अपने को कहते जी डिसप्लेसमेंट है वो की हो रही है डायरैक्ट प्रपोर्शन दे विच है स्केयर ऑफ टाइम। तो अपने को किस तरह एक्सेलरेशन होगी जिमें जिमें अपने को डिस्टेंस बढ़ रही है दूरी बढ़ रही है उस तरह नाल अपने को टाइम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब की होगा यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन। बी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो अ स्पिरिटर इज रनिंग। स्पिरिटर की होंगे दौड़न वाला दौड़ाक इज रनिंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम विद कॉन्सटेंट स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज़ चेंजिंग इन केस। उन्हें दे विच आपां पहला 4 ऑप्शन नहीं पढ़ते, पहला आपां देखते हैं कि कोई दौड़ाक है जिहड़ा एक सर्कुलर पाथ दे विच मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपां की चीज़ चेंज होगी। आपां नूं पता है कि सारे किते मैगनीट्यूड इक्को जिहा रहूगा, वेलोसिटी इक्को जी रहूगी, एक्सेलरेशन इक्को जी रहूगी। तो बदल की रहा है दिशा, डायरैक्शन जिहड़ी बदल रही है। हुण आपां देखते हैं कि चारों ऑप्शनों दे विच डायरैक्शन है किस ऑप्शन दे विच। तो आपां देखते हैं कि सी ऑप्शन दे विच की है डायरैक्शन है कि स्पिरिटर की जी डायरैक्शन है वो की है बदल रही है। सिर्फ दिशा जी बदल रही है, बाकी सब कुछ की है सेम रह रही है। क्लीयर। नैक्सट अपने को हैगा द स्पीडोमीटर ऑफ कार मैयर्स। हम आपने पढ़िया सी फस्ट वीडियो कि स्पीडोमीटर की मैयर करता है स्पीड नूं मैयर करता है स्पीड नूं। बट इत्थे 2 ऑप्शनों के विच स्पीड है एवरेज स्पीड इंटेनियस स्पीड। तो इंस्टंटेनियस स्पीड किहड़ी हुंदी है जिहड़ी आपां हुणे एट ए टाइम मैयर करते हैं जिहड़ी। बट आप एट ए टाइम तो देखना नहीं होंदा, आपने देखना होंदा कि सारे रस्ते दे विच अपनी जिहड़ी स्पीड है किस तरह रही है। ठीक है, इस तरह स्पीडोमीटर की मैयर करता है एवरेज स्पीड। ऑप्शन ए इज़ करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट अपने को हैगा विच ग्राफ रिप्रजेंट द मोशन विद यूनीफॉर्म स्पीड। आप काफ़ी बारी कर चुके हैं कि यूनीफॉर्म स्पीड का जिहड़ा हैगा ग्राफ किहड़ा। आपने पढ़िया सी कि यूनीफॉर्म स्पीड इस तरह नाल हुंदी आ इस तरह नाल, बट इस तरह का कोई ग्राफ है नहीं गा। देखो ये आप कैंसल किमें करांगे, जिहड़ा फस्ट है वो नहीं हो सकता क्योंकि ये की है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, ये की है कॉन्सटेंट स्पीड है, ये भी की है कॉन्सटेंट है, ये की है रिटार्डेशन हो रही है। तो अपने को चेंज कि हो रहे हैं इस दे विच। ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट हैगा अ बॉडी हूज स्पीड इज़ कॉन्सटेंट हैज़ अ कॉन्सटेंट वेलोसिटी मस्ट बी एक्सेलरेटिंग
माइट बी एक्सलरेटिंग ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਟ करे। C is the correct option. A player completes a circular path of radius r in 40 seconds. At the end of 2 meter 20 seconds 2 minute 20 seconds the displacement will be। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 0। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। एनर्जी है जी की है स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी की कोई भी दिशा नहीं होंगी। पढ़िया से ना कि वैक्टर क्वांटिटीज़ किहड़ियां होंदियां ने जिहदा मैगनीट्यूड भी होवे डायरैक्शन भी होवे, ठीक है। आई होप तुहानूं सब नूं जिहड़े क्वेश्चनस ने क्लीयर हो गए होणगे, ठीक है। अगर किसी नूं भी कोई जिहड़ा डाउट होया तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच क्लीयर कर सकते हो। सारे जने अपने जिहड़ा नंबर ने जरूर शेयर करियो कि किन्ने किन्ने नंबर आए तुहाडे सारिआं दे, ठीक है। फर्स्टली तुसीं फस्ट 2 वीडियोज़ ने जिहड़ियां चंगी तरह नाल देख लियो, दैन MCQ करियो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल नूं लाइक करियो, शेयर करियो, सबसक्राइब करियो। थैंक यू।